Hello everyone, my name is Zoya Siddiqui. Welcome to the third episode of Beyond the Goalpost. Today we have such an exceptional person with us on the podcast whose words inspire us throughout our journey. He is an incredible role model to us, a positive influence, and an amazing mentor. It's a proud and honor for us to have us in our podcast. Thank you, Zoya. Good to be here in Oscar's podcast. हम बोलते हैं behind the goalpost. So there are many stories behind the goalpost in Oscar Foundation. So yes, I'm very excited and looking forward to give my first ever podcast in Oscar Foundation. So before going ahead, I would like to know about your journey. How was it? What has inspired you to join Oscar Foundation, and what is still inspiring you to be here? Yes, before joining Oscar Foundation, there was no inspiration in my life. Just जो normal life लोग जीते हैं, common man जो जीता है, that how I was living my life. And once I joined the Oscar Foundation, that was another story altogether. So it was like I was a school dropout child, and we all used to stay in the same community, Ambedkar Nagar, where I interacted with Ashok Bhaiya, who founded Oscar Foundation, and he asked me to play football in Oscar. So he was like, why don't you come and play football if you are free? So I said, okay, I'm free. So every Saturday 4 to 6 we used to go to Cross Maidan in metro. We used to walk from home to metro. It was around 4.5 kilometers. तो हम ऐसे जाते थे और 4 to 6 हम फुटबॉल खेलते थे. और जब हम फुटबॉल खेलते थे, हम हमारे जो भी घर में इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, हमको कुछ याद नहीं रहता था, बिकॉज वी वर टोटली इनटू फुटबॉल. सो द मोमेंट आई यूज्ड टू किक द बॉल, अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है. What are you currently doing with the program? What is the current status? In Oscar Foundation right now, I am into different roles. I'm playing different roles in different areas. Like I look after rural programs where our program runs in Karnataka and Rajasthan. Right. So these are our rural program, जहाँ पर हम दोनों प्रोग्राम मिलाकर कुछ almost 3,000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, and we have around 80 young leaders and 7 staffs in both the locations. Apart from this, I also look after Enabling Change program, which is very close to my heart. Wow. The Enabling Change program is a program where we work with the children with the hearing impaired, speech impaired, autistic children, learning disability. So these are children very special for us, and Lalu, who is looking after this program on the ground. And इसके अलावा हम यंग लीडर प्रोग्राम में भी मेरा योगदान है, जहाँ पर I train youths. It's like a train the trainer program. हम उनको सिखाते हैं, and these young leaders go in their own community and implement Oscar program in their community. So amazing. So जैसा आपने कहा कि Enabling Change is a close program to you. Yes. Is there any incident that has occurred to you, or any incident has struck to you that has brought this program so close to you? Yes. In 2014, I got an opportunity to travel South Korea, जहाँ पर I attended United Nations Youth Leadership Program. It was 12 days program, और वहाँ पर हमको सिखाया गया कि कैसे हम इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं. Right. क्यों इन बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना ज़रूरी है. इंक्लूजन वर्ड जो है मैं पहली बार सुना था वहाँ पर, और ये इंक्लूसिविटी होता क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना मायने रखता है एक उन बच्चों में जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जहाँ पर वो फुटबॉल खेले या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स खेले. सो आई एम एक्सपर्ट इन टू फुटबॉल. देन आई थॉट कि चलो यार ये स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वी फर्स्ट बिगिन आवर एनेबलिंग चेंज प्रोग्राम इन बॉम्बे इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड स्पीच इम्पेयर्ड बच्चे हैं. और उन बच्चों को जब हम सिखाते थे फुटबॉल, जो जॉय उनके फेस पे आता था, जो स्माइल उनके फेस पे आता था, दैट वाज इनक्रेडिबल. भाई मैं बोला कि यही तो हम चाहते हैं, कि हमको हमेशा अशोक भाई भी बोलते हैं कि हम लोगों को एक वरदान मिला है भगवान से कि हम बच्चों के फेस पे स्माइल ला रहे हैं, तो हमको एक वरदान मिला है. क्योंकि सबको ये वरदान नहीं मिलता है कि किसी के फेस पे स्माइल लाना. और आई
लिटरली थॉट कि हाँ आशुक भाई ने बोला था एक बार, और मेरे को वो कनेक्ट हो रहा था जब वो बच्चे मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर दिस प्रोग्राम इन डिफरेंट स्कूल्स। तो फिर हमने हेलन केलर स्कूल जो घनसोली में है वहाँ पर स्टार्ट किया। फिर अभी हमारा जो प्रोग्राम है कुछ 150 प्लस बच्चों के साथ काम कर रहे हैं हम लोग 5 अलग अलग स्कूल्स में। अमेजिंग। सो सर, आप इतने कीन, आपने एंथुजियाज्म में आपने बोला कि आपको इंक्लूजन लाना था स्पोर्ट्स में, बट जब आप इंक्लूजन की बात करते, सोसाइटी डज नॉट एज अ ब्रॉड स्केल एक्सेप्ट इंक्लूजन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जब हम बात करते हैं स्पेशल इम्पेयर्ड की, ऑटिज़म की, लर्निंग इम्पेयर्ड की, उन्हें एक अलग आइसोलेशन में रखा जाता है कि ये बॉक्स है नॉर्मल बच्चों का एंड देयर इज़ अ डिफरेंस क्राइटेरिया ओनली फॉर दोज किड्स। Yes. उनको मर्ज नहीं किया जाता, उनको वो Yes. अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाती। सो व्हाट आर योर टेक्स एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट शुड बी इन द सिस्टम? आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक बार उनको भी अपॉर्चुनिटी देकर देखो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि उनमें भी कितना कैपेबिलिटी है, उनमें भी कितना जोश है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो यही सोचती है कि अरे ये बच्चे नाजुक है, राइट। अगर हम इनको कोई स्पोर्ट्स खिलाएंगे इनको चोट लग सकती है या ये गिर सकते हैं। अरे भाई उनको बाहर तो निकालो, गिरने का मौका तो दो, तभी जो जाके सीखेंगे। तो वो मौका हमने क्रिएट किया है इन बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, लाइक वन इज़ द एक्सेप्टेंस कि आपका बच्चा भले से जैसे, इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट, यस, इट इज़ एन ऑनर टू Yes. हैव दैट एज अ गिफ्ट, वो एज अ डिसऑनर नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उनका टैलेंट तो हम सब में होता है, यस, एक स्पेशली नहीं, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस करे एंड यू शो इट टू द वर्ल्ड। यस। And now with enabling change, they have the platform. They are doing so great. We have so many good stories. Have you received any feedback from the kid itself? यस यस यस। अब जब भी अगर मैं उनसे जब मिलता हूँ या इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं फीडबैक नहीं बोलना चाहूँगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग बोलना चाहूँगा, या फिर उनका जो हैप्पीनेस है वो शेयर करते हैं वो बोलना चाहूँगा। फीडबैक इज़ समथिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव। बट वहाँ पर वो ऐसा चीज़ है कि आते हैं, सर आप बहुत दिन के बाद आए, अरे कैसे हो सर, तो वो सब जो है बहुत अच्छा लगता है। और पेरेंट्स से जब इंटरेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स का एक अलग ही अभी टेक अवे है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि हमने एनुअल डे किया था रिसेंटली जहाँ पर हमने पेरेंट्स को भी बुलाए थे। और जिस हिसाब से पेरेंट्स ने देखा ना कि हमारे बच्चे क्या क्या गेम खेल रहे हैं और कितना मज़ा कर रहे हैं, शायद ये हम नहीं दे सकते थे, उनको ऐसा फील हुआ है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स का टेक अवे बहुत अच्छा है और बच्चों का जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है उनकी, भले ही वो बोल नहीं पाते बट उनके जो एक्शंस है वही सब कह जाते हैं कि वो कितना मज़ा कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। So amazing. Would really love to talk more about it. But going little behind, like you have said, you have been grown and brought up here itself. So you've Yes. seen the city life here. Yes. And now you are working with the youth in Mumbai as well. Yes. But you are minutely working with the rural projects. So what do you see the difference between those rural projects to cities, and what is the one thing that you would love to add to it? There are a lot of differences between अपना cities and rural के young leaders में. If I talk about our cities young leaders, they have a number of opportunities in the market. Right. If they don't get good opportunity here, they go to different places. और इसके वजह से कहीं ना कहीं वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो रहा है कि अरे यहाँ पर नहीं मिल रहा है हम वहाँ पर चले जाते हैं, अरे ये ठीक नहीं दे रहा है हम दूसरा ट्राई करते हैं। बट दैट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड हमारे जो रूरल प्रोग्राम के लीडर्स दे डोंट हैव, दे वैल्यू। अगर आप उनको एक बॉल दे दोगे ना, उनको पता है उस बॉल को कैसे संभाल के रखना है। आप उनको एक टी शर्ट दे दोगे, उनको पता है कैसे रखना है। आप उनको एक टीम दे दोगे, उनको पता है कैसे हमको जिम्मेदारी के साथ रखना है। तो अगर एक चीज़ अगर मैं लेना चाहूँगा हमारे रूरल प्रोग्राम से, दैट इज़ यूनिटी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी है हमारे रूरल प्रोग्राम में। जो यंग लीडर्स है
बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और मैं चाहूँगा भी नहीं ब्रेक करे। तो ये जो चीज़ है आपको रूरल प्रोग्राम में ही देखने मिलेगा। अभी वो लोग झाड़ लगा रहे हैं, इन्वायरमेंट पे ऊपर काम करने वाले हैं। हमारे राजस्थान के जो यंग लीडर्स हैं उनका मानना है कि इतना बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर सिर्फ एक झाड़ है, अगर हमको अगर धूप वगैरह आएगी तो हम बैठेंगे कहाँ पर, हमको इन्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। हमारे गांव में सब इतने सारी लॉरीज आती है, माइनिंग का काम बहुत होता है राजस्थान में, वो गांव के साइड में, उसके वजह से धूल मट्टी बहुत उड़ रही है और शायद लोग भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि धूल मट्टी जो भी घर में जा रहा है, खाने में जा रहा है, उनके एरियाज में फैल रहा है, तो लोग झाड़ लगा रहे हैं। और अभी इंटरनेशनल यूथ डे है 12 ऑफ अगस्त को, वो लोग झाड़ लगा रहे हैं और स्प्रेड करने वाले हैं कि कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट को बचाना। तो ये सब आपको रूरल प्रोग्राम में ही देखने मिलेगा। ऑफकोर्स हमारे सिटीज़ के यंग लीडर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बट येस ये डिफरेंस है हमारे सिटी और रूरल प्रोग्राम में। So true, like ऐसे नहीं कि it is only purple results, it is so visible, it is there right on the pitch, it is there right in front of Yes. parents, teachers who once thought their kid is not well enough. Yes. And now they are just nothing, just was proud to have the kid and they're just happy they Yes. have the kid around them. So this is so cool. एंड इवन कर्नाटका का प्रोजेक्ट जो भी है हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे पोस्ट है, सो कितना अच्छे नंबर्स पे रीच आउट हो गया, इट इज शोइंग सो वेल, दे हैव अ ग्रेट मेंटर लाइक यू. This is my next question coming up. Like even looking at my journey back, like we had you as a mentor, like you were there with us to tell us what is not right and wrong, but to navigate us by telling us the situation what we are in. Yes. Not just putting us the answer, just telling us what is the situation and mirroring us in front of the situation. So like who was there to you? For me, as you said, you were there, I'm still there, I hope. So for me, in different stages different people played a mentor role, because I can't say only one name and give all the credits, but there are people who stood up by my side and guided me what is wrong, what is right. If I take name first, of course I would like to thank my teachers, school teachers, because from there only मेरे को क्लैरिटी आई कि भाई ऐसी भी चीज़ होती है लाइफ में। जैसे कि मेरे स्कूल की एक टीचर थी, प्रभा टीचर, उन्होंने मेरे को अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि जो एज है 16-17 से लेकर 21-22 तक, अगर आप ये एज को कंट्रोल कर लोगे, आप किसी रिलेशनशिप के चक्कर में ना जाए, या किसी पैसे कमाने के चक्कर में ना जाए, या फिर कोई एडिक्शन के चक्कर में ना जाए, तो आप अपनी लाइफ की जंग जीत गए। Right. तो ये एक उन्होंने एडवाइस दिया था, तो ऑफ कोर्स वो मेरे लिए उस टाइम पे मेंटोर थे। फिर उसके बाद अशोक भैया, जो अभी तक हमारे मेंटोर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने काफ़ी हमको गाइड किया है। कैसे कपड़े पहनने हैं वो भी हमको बताया है, और कैसे बात करना है, कैसे अपने को ट्रैवल कैसे करना है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है। और इसके अलावा आई ऑल्सो थिंक कि मैंने जो ट्रैवल किया है, that's something that shaped me what I am today. Wow. Because ट्रैवल से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है, और मुझे अलग अलग लोगों से इंस्पिरेशन मिली है। जैसे कि योगन है, जो कॉमन गोल के फाउंडर है, मैं जब भी उनको मिलता हूँ या फिर जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, मेरे को एक अलग तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है, या फिर एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज मैंने उनकी बुक पढ़ी है, शायद ही मैंने मेरे कॉलेज में पूरी बुक पढ़ी होगी, बट रेडिकल फुटबॉल जो 450 पेज की है वो पूरी मैंने बुक पढ़ी है, और एक एक लाइन मुझे याद है कि उन्होंने कैसा शुरू किया था उनकी जर्नी। As you said, आप बहुत ट्रैवल करते वक्त आप लोगों से सीखते हो, Yes. आप उनके बिहेवियर से सीखते हो। सो जब हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट ट्रैवल लाइक? My first travel was Brazil. Of course, I love Brazil national football team. When I started playing football,
तो मैं तब से लेकर मेरा चाइल्डहुड फेवरेट टीम रहा है ब्राज़ील वर्ल्ड कप में, और मेरा फर्स्ट कंट्री भी ब्राज़ील ही था। तो अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट कंट्री ट्रैवल करने का, क्योंकि मेरे घर में किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या ही हम प्लेन में ट्रैवल करेंगे। मेरा फ़्लाइट था ब्राज़ील के लिए वाया हीथ्रो एयरपोर्ट। तो मेरे को निकलना था रात को, 4 टैक्सी भर के लोग आए मेरे को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। So sweet. क्योंकि फर्स्ट बंदा उनके साथ वाला ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सब ड्रॉप करके चले गए, सी ऑफ किए, बाय बाय बाय। बट वहाँ पर जाकर पता चला कि मेरा जो वीज़ा है वो ब्राज़ील का है, और टू ट्रैवल वाया हीथ्रो यू नीड ट्रांजिट वीज़ा। Oh. अलाउ नहीं किया मेरे को, तो आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर वहाँ पर एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लेडी थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और गाइड किया कि तुम्हारा वाया दुबई हो सकता है, जो तुम्हारा टिकट बुक किए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट किए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। तो वहाँ पर मैंने कांटेक्ट किया, मैं आज भी नाम नहीं भूल सकता उसका, क्रिस्टोफर से मैंने बात किया, और मैं बोला क्रिस्टोफर ये हैपेंड, लाइक दिस हैपेंड, एंड आई वाज क्राइंग। सो ही इज़ लाइक डोंट क्राई, गो एंड विल फिगर इट आउट समथिंग, यू जस्ट गो बैक होम। 4 टैक्सी गई थी, सब रिटर्न आई मुझे लेने के लिए। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बट येस, समहाउ नेक्स्ट डे आई मेड इट टू ब्राज़ील, एंड वहाँ पर मैंने जो हम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एक्चुअल में मेरे को सीखने मिला वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं हमारे ही कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा था, इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा था, हमारे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा था। बट व्हेन आई वेंट देयर, मैंने देखा कि सिर्फ इंडिया में एजुकेशन को लेकर इश्यूज़ नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ में भी है, क्योंकि 24 कंट्रीज़ से कुछ 30 पार्टिसिपेंट आए थे। और एजुकेशन जो है सब में प्रॉब्लम है कि सब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, सब जगह पर वो फॉलो नहीं होता है। हम बोलते हैं कि इंक्लूसिविटी सब जगह पर नहीं है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्पोर्ट्स के थ्रू, फुटबॉल के थ्रू। तो ये मेरे को वहाँ पर सीखने मिला। और यस, मैं बहुत ही ट्रैवल किया वहाँ पर, बहुत घूमा। ब्राज़ील वाज अमेजिंग। राइट सर, आपने जैसे मेंशन किया था आप यूथ के साथ भी ट्रेन करते हैं आप उन्हें। तो जैसे कि करंट आज की यूथ है, तो वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ इन्वॉल्व्ड है अपने खुद के कामों में, बहुत समझ में नहीं आते वेयर डज द लाइफ गो, राइट लेफ्ट सेंटर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट अबाउट इट। सो इफ़ यू हैड टू एडवाइस देम, व्हाट वुड इट बी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ट्राई करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, ट्राई। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, और ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो निराश ना होना, और कभी गिव अप ना करना, क्योंकि फेलवर भी एक पार्ट है अपनी लाइफ का। और मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में, और ये मेरे कुछ क्लोज जो लोग हैं उनको ही पता है कितने बार फेल हुआ हूँ। बट इट्स ओके, क्योंकि फेल होगे तभी आप सीखोगे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप ना फेल होगे ना सीखोगे। तो ट्राई करो और एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, एंड हमेशा खुद के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे को और क्या, मेरा इंटरेस्ट किस में है। मेरे को खाली मार्केट में जॉब दे रहे करके चले जाओ मत, अपना इंटरेस्ट भी जानो। एंड यस, आसमान बहुत बड़ा है, उड़ो यार। Thank you, sir, not just for coming here for the podcast, but thank you for being there for us. Like, not as a mentor, not as a friend, not as a teacher, but just your being is so influential to us. We see you as a guiding force. We see you as someone who does not stop to learn, who does not stop to laugh, who does not stop to care, give, and everything. So these are the qualities we pursue to have in us also, to adapt, not just to keep it with ourselves, to spread it among the world. We say change does not come like that, but if we have a change maker like you, I am sure not tomorrow, not day after tomorrow, but the change will come. So thank you so much for having your presence in our podcast.
Thank you so much, Zoya. And whenever I share my story, I always go my in my back in time कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी and where I was and where I am right now. And as you said, it was a roller coaster. But yes, it was a roller coaster, and still it is. But I'm enjoying it. And yeah, thank you so much.